Okay. Hi everyone, this is Charanjit back. In the last session, we have learned about the index to disease and injury, and today I'm not going to repeat the index and disease and injury. हम पूरा सेशन हिंदी में ही रखेंगे, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी ओनली. तो हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि हमें इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी कैसे यूज करनी है और क्या क्या डिसीजेस हमें उसमें से मिल सकती हैं और क्या यूज है इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी का. As well as we learn how to complete the code, how we can complete the code, what we have to do to complete the code, what is the role of the placeholder, and why we need the placeholder. This is the basic things we learned in the last session. So today we will start table of neoplasm, table of drugs and chemical, and the last part of our index to external cause of injury. Index to external cause of injuries. ये हम आज के सेशन में सीखेंगे. अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडेक्स टू टेबल ऑफ नियोप्लाज्म से. सो आपका इंडेक्स, आपको मैंने पहले भी बताया था, इन द 24th सेशन या 24 वर्जन ऑफ द आईसीडी मैनुअल, our index to disease and injuries starts from the page number 82, or once anatomical installation has been completed, then we have the index to disease and injury. After the index to disease and injury, we have table of neoplasm. So, oh, I haven't started sharing my screen yet. Just give me a second. Sorry for that. So you can see here, we have this one. See here, the major difference between malignant and benign. In the malignant, cells are cancers and not intact in the sac. It starts metastasizing. Okay, so malignant cancer will always metastasize. Maybe your cancer is not metastasizing right now, but later on it will start metastasizing. Okay, so this is a process of spreading. But in the benign tumor, cells are not cancerous. Cells are not cancerous. Also, it is intact in the sac. So सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते और वो एक सैक के अंदर बंद होते हैं. ठीक है, इसीलिए इसे बिनाइन बोला जाता है. बिनाइन ट्यूमर एक्सपैंड हो सकता है, वो अपने साइज को एक्सपैंड करा सकता है, बट वो एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सैक में इनक्लोज्ड होते हैं. अब कार्सिनोमा इन सिटू एक ऐसी स्टेज होती है जब आपके सेल्स तो कैंसरस हो जाते हैं. ये हमारी मिड स्टेज होती है कि सेल्स तो अब कैंसरस हो गए, बट अभी भी वो एक जगह इंटैक्ट है. तो सेल कैंसरस है बट वो एक जगह इंटैक्ट है, यानी कि अभी वो एक लोकेशन पे, इन सिटू मींस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इंटैक्ट है. सो नेक्स्ट थिंग इज कार्सिनोमा इन सिटू वी हैव कवर्ड. benign, again it's a non cancerous. Now uncertain behavior, I think we have already discussed this, but let me explain it one more time. As a coder, you don't need to behave as a doctor. As a coder, your role is to read out the report, to summarize the report, and code whatever the documentation have. You don't need to give your judgment. Like in once in a blue moon, doctor mentioned that patient have a benign tumor which is metastasized. So in this case, you will not code malignant neoplasm on your own. You have to ask from the provider, you have to ask from the doctor. आपको आपके डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि भैया ये बिनाइन नियोप्लाज्म है, हाउ इट कैन बी मेटास्टाइज. सो जब भी ऐसा केस होता है कि आपके पास कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है जो आपको किसी सोल्यूशन पे नहीं लेके जा पा रही है, आपको किसी कोर्ट पे नहीं लेके जा पा रही, देन यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर
कि if there is any condition which is not documented or if there is any classification which is not documented, kindly provide. और अगर आपका डॉक्टर आपको वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा तो आप वही कोड करोगे जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर आपके डॉक्टर ने लिखा है कि पेशेंट को बेनाइन नियोप्लाज्म में जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मेटास्टाइज हो गया, तो एट द एंड आपको बेनाइन करना पड़ेगा आफ्टर आस्किंग फ्रॉम द डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया। यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर। आपको खुद से जजमेंट नहीं करनी है कभी भी, आपको वही कोड करना है जो आपके डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है। अगर आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है कि पेशेंट को फीवर और कफ है और लैब में आपको दिख रहा है कि कोविड पॉजिटिव है, आप तब तक कोविड पॉजिटिव कोड नहीं करोगे जब तक आपका डॉक्टर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं दे देता लैब की कि पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव। Sometimes we have to vary this guideline based on the provided instructions. Sometimes कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं कि भैया मेरी पैथ को देख लो और उसके बेस पे आप खुद कोड कर लो. That is an exception, but in terms of CPC or in terms of normal interview guidelines अगर आप जाओ तो आपको वही कोड करना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, until unless आपके पास कोई exception आपके डॉक्टर ने आपको नहीं दिया. Now coming back to the uncertain behavior. Uncertain behavior is when you provide a clearly documents that I am unable to determine the behavior of neoplasm. Or neoplasm behavior is uncertain. Sometimes it shows the malignancy nature, sometimes it shows the benign nature, sometimes it shows carcinoma, etc. But your doctor is not clear about the behavior of neoplasm. So when your doctor clearly mentions, hey, I'm not clear about the behavior of neoplasm, then only you have to use uncertain behavior. If provided doesn't mention anything in regards to the behavior, डॉक्टर ने कुछ भी मेंशन नहीं लिखा, डॉक्टर ने लिख दिया कि भाई पेशेंट को एब्डोमिनल नियोप्लाज्म है, डॉक्टर ने नहीं बताया कि वो मैलिग्नेंट है, वो बिनाइन है, वो अनसर्टेन है, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया. In that case you have to follow unspecified because it is not specified. To use the uncertain behavior, doctor must mention that I am unable to determine the behavior of neoplasm. Then only you will go for the uncertain. अनसर्टेन और अनडिटरमाइन एक ऐसा टर्म है जो आप तभी यूज करोगे जब आपका डॉक्टर आपको क्लियरली बोलेगा कि भैया मैं इस नियोप्लाज्म के बिहेवियर को ट्राई करने का मैंने फाइंड आउट करने का मैंने ट्राई किया बट आई एम अनएबल टू फाइंड दैट. सो इन दिस केस वी विल यूज अनसर्टेन बिहेवियर. When the behavior of neoplasm is not clear, we will follow the uncertain behavior of the neoplasm. And the next is unspecified behavior. Unspecified behavior हम तब यूज करेंगे जब हमारे डॉक्टर ने नियोप्लाज्म के बिहेवियर के बारे में कोई बात नहीं कही है, ना ही उसने बोला है कि ये मैलिग्नेंट है, ना ही बेनाइन, ना ही अनसर्टेन, ना ही इन सिटू, कुछ भी नहीं बोला. जस्ट डॉक्टर ने बोल दिया पेशेंट हैविंग अ नियोप्लाज्म ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. We never know what is the type of the neoplasm, whether it's a malignant, benign, or whatever. So in this case, we will use unspecified behavior. So let me take one more question. Now, let's just take a one recap so that हम फटाफट cover कर लें. So table of neoplasm हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब किसी पेशेंट को ट्यूमर होता है और abnormal growth of cells होती है. टेबल ऑफ नियोप्लाज्म यूज करने के सिर्फ दो स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है आपको एनाटॉमिकल लोकेशन देखनी है, दूसरा स्टेप है आपको बिहेवियर देखना है कि किस टाइप का नियोप्लाज्म पेशेंट को है. नियोप्लाज्म टेबल जो है वो डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द बिहेवियर एज वेल एज द लोकेशन. लाइक इन द इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी, फर्स्ट यू हैव टू रेफर द डिसीज, देन यू हैव टू लुक फॉर द क्लासिफिकेशन. बट इन दिस केस इन द टेबल ऑफ नियोप्लाज्म फर्स्ट यू हैव टू लोकेट द anatomical location and then the sub classification or the subdivision of the anatomical location. Like you can see here, abdomen is divided into the cavity, abdomen cavity, abdomen organ, abdomen viscera, wall, and then wall is divided into the different parts like skin, basal cell carcinoma, and later on. So first you have to locate the anatomical location, and whatever the specification of the anatomical location is documented in your documentation, you have to look for the code in that particular specification and in that particular classification. So once you reach to the anatomical location, you have to look for the behavior which is documented in your documentation. Remember, you don't need to consider the behavior of neoplasm on your own. Whatever the documentation have,
if the malignant is mentioned, you have to quote the malignant. If the benign is mentioned, you have to quote the benign. If the uncertain is mentioned, you have to quote it as an uncertain. If there is any histological term means like doctor mentioned that patient have the adenoma. Just a second. So like doctor mentioned that patient have the adenoma of abdomen. So now you are not clear what does adenoma means. Adenoma is malignant, benign, or whatever the adenoma is. So whenever we have the histological term, in that case you have to refer the index to disease and injury. So अगर आपके पास ऐसा histological term आता है जिसमें आप क्लियर नहीं हो कि भैया ये कौन सा पार्ट है, ये malignant है, benign है या uncertain है, उस केस में आप index to disease and injury करो. तो चलो ये ट्राई करते हैं भाई. अब क्वेश्चन लेते हैं. एडिनोमा ऑफ let's say adipose tissue. तो अब हमें पता नहीं एडिनोमा क्या है, तो हम सबसे पहले रेफर करेंगे इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द एडिनोमा इन द इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी. So now in this page we have AN to aneurysm. We have to look for the adenoma, so we have to go for AD, AB, AB, abuse. We can find the adenoma in this page. Its addition, we have to put adenoma, ADE. Okay, ADENON. So we have to scroll it more. Here we go. So here we have the adenoma, and if we go to the adenoma, we have an instruction, C also instruction, which is telling us for the adenoma, to find the code for the adenoma, you have to refer the neoplasm table, then benign, and then by site. So now you know if patient have a adenoma, that means patient have a benign neoplasm. Likewise, if patient have a adenocarcinoma, in that case you have to follow the neoplasm malignant by site. You can see here, malignant by site. So whenever you have these type of histological term, you have to refer the index to disease and injury first to understand what is the behavior of this histological term and what is the behavior of this neoplasm. Once you get the behavior, then you can refer back the table of neoplasm as instructed in the index to disease and injury. उसके बाद आप यहाँ पे आके देखोगे कि एडिपोज टिश्यू था हमारा. हम लोकेशन पे जाएंगे भाई. एडिपोज टिश्यू ये रहा. 2 स्टेप थे. पहला एनाटॉमिकल लोकेशन एंड देन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर आप इसका कोड ले लोगे. तो बेनाइन का कोड हो जाएगा हमारा D21 पॉइंट. तो जब भी आपके पास ऐसा हिस्टोलॉजिकल टर्म होता है, उसके लिए आपको रेफर करना है इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द क्या भाई बिहेवियर ऑफ नेओप्लाज्म. तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं फटाफट से, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल. सो लेट्स से our patient have malignant neoplasm of, let's say, right kidney. Metastasize from, metastasize from, let's take stomach. So patient का क्वेश्चन है
डॉक्टर पेशेंट आया हमारे पास मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ राइट किडनी लेके, जो कि उसको मेटास्टाइज हुआ था स्टमक से. Now you can do one thing, you can just pause this video and try to find the code on your own in your manual, and if you does not have the manual you can contact us at 7838257244. We can share the manual. I will share the manual free of cost, so you can contact us for the manual of the ICD-10C. सो where we are, हाँ. सो आपको इस वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन खुद ढूंढने का ट्राई करना है. उसके बाद अगर आपको मैच करना है कि हम इसको ढूंढ पा रहे हैं नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर मैं और आप एक सेम पेज पे हैं या नहीं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द कोड. पेशेंट को राइट किडनी का कैंसर है, मेटास्टाइज हुआ है कहाँ से, स्टमक से. वही फ्लो चार्ट बनाते हैं भाई. मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, दो जगह पे देखते हैं प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है. ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, इसको हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. पेशेंट को कहाँ पे कैंसर था, स्टमक पे था, और मेटास्टाइज जो अब किडनी में जो हुआ है वो कहाँ से आया है, स्टमक से आया है. तो सेकेंडरी हमारा हुआ किडनी का, क्योंकि मेटास्टाइज कहाँ से होना शुरू हुआ है. फ्रॉम लिखा है ना, पिछले वाले में टू था, यहाँ पे फ्रॉम है, और यहाँ पे हमारा आ गया स्टमक. तो पेशेंट में स्टमक का प्राइमरी कैंसर हो गया और राइट किडनी हमारा सेकेंडरी हो गया. नाउ स्टार्ट फाइंडिंग द कोड. टू फाइंड द कोड फॉर द ट्यूमर वी हैव टू रेफर द टेबल ऑफ नियोप्लाज्म, एनाटॉमिकल लोकेशन फॉलोड बाय द बिहेवियर. तो सबसे पहले हम किडनी ढूंढते हैं. इस पेज में हमारा बोन से लेके कैंपस तक मिलेगा, यानी कि बी से लेके सी तक के जो टर्म्स होंगे वो हमें इस पेज में मिलेंगी. Then we have to look for F to I. We have to look for the K. So इसके बाद ही होगा ये KL. हमें K जो मिलेगा वो इस पेज में मिल जाएगा, यानी कि किडनी हमें इस पेज में मिलेगा. So let's start finding the code from here. We have island, jaw, and J. Here we go. This is our K, kidney. Now in kidney we have secondary neoplasm. So after reaching the kidney, we will refer the malignant secondary column. You can see here we have the hyphen after the code C79.0. Then we have the hyphen. C79.0 के बाद hyphen लगा हुआ है. तो hyphen का मतलब होता है कि ये कोड इनकम्प्लीट है, हमें इस कोड को कंप्लीट करना होगा. तो हम क्या करेंगे, C79.0 अभी लिख लेते हैं, इसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है. लेट मी मेंशन द हाइफन आल्सो सो दैट आई विल रिमेंबर दैट दिस इज एन इनकम्प्लीट. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द कोड फॉर द स्टमक. रिमेंबर वन थिंग, जितनी जगह पे जितने लोकेशन पे कैंसर होगा उतनी लोकेशन का आपका कोड जाएगा, उतनी एरियाज के उतने नंबर ऑफ कोड्स आपके जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हर लोकेशन का हमारे पास अलग अलग कोड है, हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन कोड नहीं है दो लोकेशन के लिए. सो अब कहाँ से मेटास्टाइज हुआ था, स्टमक से हुआ था. स्टमक के लिए तो भाई हमें एस पे जाना होगा. इस पेज में एल से लेके एन तक है, यहाँ पे स्किन तक है. स्टमक स्टार्ट्स फ्रॉम STOMACH, सो वी हैव टू स्क्रॉल इट मोर. इस पेज में हमें स्टमक मिल जाएगा. आई कैन सी हियर, यहाँ पे भी स्किन चल रहा है, तो स्पाइन पे आ गए. ये देखो स्टमक, एंड स्टमक में कौन सा था, मैलिग्नेंट प्राइमरी. वी हैव टू पिक C16.9. सो फॉर स्टमक के लिए हमारे पास हो जाएगा C16.9 और आई मेंशन इट हियर टू. तो अब हमारा क्या काम बचा, कोड को कंप्लीट करना. सो नाउ लेट्स मूव टू दी. कंप्लीट करने का प्रोसेस क्या होता है भाई, टैबुलर. टैबुलर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे सारे इंडेक्स खत्म हो रहे हैं वहां से हमारी टैबुलर लिस्ट स्टार्ट हो रही है. In 2024 manual, tabular list starts from the page number 504 based on the PDF and page number 461 based on the hard copy. So हमें tabular में वो कोड है, तो हम 504 पेज नंबर पे हैं. अब आते हैं
कहाँ पे आना है भाई, C79.0 आना है, तो थोड़ा सा लंबा, चलो पहले आप लोगों को सामने से दिखा दें। यहाँ पे हमारा 514 जा रहा है, B पे पहुंच गए हम, C79 जाना है भाई, 50 पे आ गए, ये हमारा C79.0। अब हमें कितने कैरेक्टर चाहिए किसी कोड को बिल्ड करने के लिए, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जो भी नंबर लिखे होते हैं एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कोड। अगर आपके कोड के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट है। अगर आपके कोड के लेफ्ट साइड पे लिखा है, इसका मतलब है ये इनकम्प्लीट है और इसे इतने कैरेक्टर चाहिए टू बिल्ड द कोड। नाउ our code is C79.0 and book is asking for the 5 character to build this code. To make it 5 character, this code is further divided into the 3 parts, C79.0, 1 and 0. हमारे क्वेश्चन में कौन सा था? राइट था, तो हम क्या लेंगे? राइट लेंगे C79.0। एक चीज क्लैरिटी होती है ना, राइट, लेफ्ट और 1, ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम टैबुलर में ही डिवीजन मिलता है, इंडेक्स में राइट और लेफ्ट का हमें अलग अलग नहीं मिलता। So now we have completed table of neoplasm. So let's back to the agenda of neoplasm. We already did the recap of this or revision of this. Now we have to start of drug and chemical. अब भाई जैसे ही आपका टेबल ऑफ नियोप्लाज्म खत्म होता है, उसके बाद शुरू होता है टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल। यू कैन सी हियर, ये टेबल ऑफ नियोप्लाज्म चल रहा है। अब जैसे ही टेबल ऑफ नियोप्लाज्म खत्म हुआ, उसके बाद हमारा शुरू हो गया टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल। With the name you can understand, you have to refer this table of drug and chemical only when patient have any issues with the drugs and chemical। अब ड्रग ये वाला नहीं, साइकोएक्टिव सब्सटेंस को ड्रग मत कंसीडर कर लेना भाई। ड्रग मतलब जो हमारे फार्माकोलॉजी वाले जो ड्रग होते हैं उसको हम ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल पे थे। टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल को भी यूज करने के हमारे 2 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप, सब्सटेंस। यू हैव टू लुक फॉर द सब्सटेंस। कौन से ड्रग, कौन सी मेडिसिन की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है। सेकेंड वन इज इंटेंट, कि भाई अगर पेशेंट को ड्रग से प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसने क्यों खाई है, वो उसका इंटेंट क्या था, उसका इंटेंशन क्या था उस ड्रग को लेने का। तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने सेकंड थिंग से, जो कि हमारा इंटेंट वाला पार्ट है। अब आते हैं अपने टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल पे वापस। सो यू कैन सी हियर all the substance listed under the substance column, and then you can see heparin, abrasion. These are the name of the chemicals and these are the name of the drug. Heparin, abrasion, benzene, so many. I'm not going to pronounce it like all. ठीक है, तो भाई सब्सटेंस पे पहुंच गए हम। हमारा पहला काम क्या है? सब्सटेंस को ढूंढना जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें देखना है कि उसका इंटेंट क्या है, और इंटेंट को दिखाने के लिए इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, असॉल्ट, अनडिटरमाइंड। अब पॉइजनिंग एक्सीडेंटल का मतलब हुआ कि इंटेंशनली खाई है। जैसे कि अगर 3 साल का कोई बच्चा है, उसके पास सारी टैबलेट्स पड़ी हैं, उसने गलती से खा ली, तो दैट इज एक्सीडेंटल। और अनइंटेंशनल ऑल्सो, सो उसका इंटेंट खुद को सेल्फ हार्म करने का नहीं है, या उसका इंटेंट उसको किसी को मारने का नहीं है, तो उसका इंटेंट क्या था? वो दैट वाज अनइंटेंशनल, तो हम उसको अनइंटेंशनल कहते हैं। ये वाला कॉलम हम ओवरडोज के केस में भी यूज करते हैं। अगर पेशेंट को ओवरडोज है तब भी हम यही वाला कॉलम यूज करते हैं।
इंटेंशनल मीन्स जब पेशेंट ने जानबूझ के भाई खुद को मारने के लिए, सेल्फ हार्म के लिए यूज किया, तो हम उसको पॉइजनिंग इंटेंशनल कहेंगे। पॉइजनिंग असॉल्ट का मतलब होता है कि हमारे पेशेंट को किसी और ने मेडिसिन खिला दी है, तो हमारे पेशेंट को किसी और ने मेडिसिन खिला दी है, इसको हम पॉइजनिंग असॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज अनडिटरमाइंड। रिमेंबर, अनडिटरमाइंड हम सिर्फ तब लेंगे जब हमारे डॉक्टर क्लियरली बोलेगा कि आई एम अनएबल टू डिटरमाइन द बिहेव इंटेंट ऑफ द पॉइजनिंग, कि वो उसकी पॉइजनिंग का इंटेंट ही समझ नहीं पा रहा, तो हम इसको अनडिटरमाइंड कहते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट। इजी लैंग्वेज में कहेंगे भाई, इसे कहेंगे हम साइड। किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट आया, ड्रग का साइड इफेक्ट मतलब किसी प्रिस्क्राइब ड्रग का। एडवर्स इफेक्ट और अंडर डोजिंग आप सिर्फ तभी यूज करोगे व्हेन द ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। सो किसी भी प्रिस्क्राइब ड्रग का कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, उसको हम एडवर्स इफेक्ट कहेंगे। और अगर किसी भी प्रिस्क्राइब ड्रग को डॉक्टर पेशेंट जो है वो लो डोज में ले रहा है, तो उसको हम अंडर डोजिंग कहेंगे। लो डोज का मतलब होता है कि डॉक्टर ने 50 mg प्रिस्क्राइब करी है एंड पेशेंट इज टेक 50 mg ट्वाइस अ डे बोला है, और पेशेंट उसको वंस अ डे टू ऑफसेट द कॉस्ट या व्हाटएवर द रीजन इज, उसको वंस अ डे और वंस इन 2 days उसको कंज्यूम करता है, तो उसको हम अंडर डोजिंग कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल पिक करते हैं इसका। लेट्स से, और एक चीज याद रखना भाई, ऐसा मत करना कि अगर आपका पेशेंट जैसे कि उसे डायबिटीज एंड पेशेंट इज ऑन मेटफॉर्मिन, तो आप भैया के यहाँ से मेटफॉर्मिन का कोड करो। इस टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल को आप सिर्फ तब यूज करोगे जब आपके पेशेंट को किसी ड्रग या किसी केमिकल की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई पॉइजनिंग हुई है, तभी आप इस टेबल को यूज करोगे। Now let's take an example. Let's say a patient having an adverse effect of एमोक्सिलिन। हमारे पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट है एमोक्सिलिन का, तो अब हम क्या करेंगे, इंटेंट क्या है इसका, एडवर्स इफेक्ट, और ड्रग कौन सा है, एमोक्सिलिन। रिमेंबर वी हैव टू फाइंड आउट two things from our question. So first is substance, then is intent. सब्सटेंस हमें कहाँ ढूंढना है, सब्सटेंस वाले कॉलम में ढूंढना है, तो हमें एमोक्सिलिन ढूंढना है। इसमें ये AC चल रहा है, ये AM चल गया, हमें AMOX पे जाना है। सो ये MP आ गया, हमें OX इसी पे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनेस्थेटिक AC में से स्टार्ट हुआ है, तो AMOX। ये MI वाला कॉलम कौन सा होता है, लास्ट सेकंड हमारा एडवर्स इफेक्ट के लिए कौन सा लेंगे भाई, लास्ट सेकंड वाला कोड T36.0x5, ये हमारा कोड हो जाएगा T36.0x5। इस टेबल में सारे कोड इनकम्प्लीट होते हैं, हमें टैबुलर से कंप्लीट करने होते हैं, तो हम मैं इसको अभी के लिए कंप्लीट कर रही हूँ, आप अपने आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, a bit difficult example. So let's say our patient have adverse effect of कीमोथेरेपी। पेशेंट को, ये क्या हो रहा है भाई, एडवर्स इफेक्ट है कीमोथेरेपी का, पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट है कीमोथेरेपी का। तो अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है सब्सटेंस ढूंढना। तो इसमें भाई थेरेपी का नाम है, सब्सटेंस का नाम तो है नहीं, तो कीमोथेरेपी में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्सटेंस ढूंढना है। तो कीमोथेरेपी में कौन से सब्सटेंस दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी में दिए जाते हैं कीमोथेरेपी में हमारे एंटी नियोप्लास्टिक दिए जाते हैं। और अगर एंटी नियोप्लास्टिक वर्ड याद नहीं आ रहा तो आप किस लिए दिया जाता है, ये कैंसर थेरेपी के लिए, कैंसर रेजिमेन होता है तो कैंसर के लिए दिया जाता है। तो हम इसको 2 वे से ढूंढने का ट्राई करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं विद द नेम ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक, देखते हैं क्या कोड आता है। ये एंटीबायोटिक चल रहा है, एंटी फंगल, एंटी हेलुसिनेशंस,
antineoplastic. Adverse effect, last second column, code will be T45.1x5. तो हमने भाई एंटीनियोप्लास्टिक से T45.1x5 ले लिया. अब जस्ट सपोज आपके माइंड में, आप कोडिंग कर रहे हो, आपके माइंड में आया नहीं कि भाई हमें क्लास ढूंढनी होती है. अगर कोई थेरेपी का नाम है, थेरेपी से तो मिलेगा नहीं, हमें सब्सटेंस ढूंढना है. अब थेरेपी के जो क्लास है, ड्रग का जो क्लास है, वो आपके माइंड में नहीं आया. तो अब आप देखोगे वो किस लिए यूज किया जाता है. कीमोथेरेपी कैंसर के लिए की जाती है, तो हमें इसमें अब कैंसर ढूंढते हैं भाई. कैंसर रेजिमेंट टाइम आता है CAN, CAR, CAN. कितना भाई कैंसर रेजिमेंट, ये कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग सेम T45.1x. सो कई बार हो सकता है कि आपकी अप्रोच दो कोड को ढूंढने के लिए अलग हो, लेकिन अगर उनकी क्लास सेम है तो आपको सेम ही कोड मिलेगा. यानी कि अगर एमॉक्सिलिन और पेनिसिलिन है आपके पास दो ड्रग्स, तो आपको दोनों के सेम ही कोड मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों एंटीबायोटिक की क्लास में आते हैं. तो अगर उनकी क्लास सेम है तो आपको उसका सेम कोड ही मिलेगा. एक दो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर पाओ. और अगेन एनुअल चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर. We will put the manual and all necessary stuffs if you need that. Next is, कहाँ पे थे? हाँ, अपने एजेंडा पे वापस चलते हैं भाई. हमने टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल ही कर लिया विद दी क्वेश्चंस, और इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं. दो स्टेप होते हैं. सबसे पहले सब्सटेंस, हम कोड लेते हैं. एडवर्स इफेक्ट तब लेते हैं जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिसिन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, और पॉइजनिंग अनइंटेंशनल हम तब लेंगे जब नहीं है कि उसको पॉइजनिंग क्यों हुई है. अनस्पेसिफाइड के केस में हम पॉइजनिंग एक्सीडेंटल लेते हैं, और फिर इंटेंशनल हम तब लेते हैं जब पेशेंट को अपने खुद को सेल्फ हार्म के लिए लिया हो, और असॉल्ट तब जब हमारे पेशेंट को किसी ने मेडिसिन खिला दी है टू harm our patient. So we have covered table of neoplasm. Now we are left with our last point, index to external cause of injury. So once your index to external cause of injury is, table of neoplasm is over. So once your index to table of drug and chemical is over, after the table of drug and chemical, we have index to external causes of injury. You have to refer index to external causes of injury whenever patient have any traumatic or any condition which is a reason of the external force or external reason. तो अगर किसी पेशेंट को कोई भी ट्रोमैटिक इंजरी होती है, या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जो पेशेंट को एक एक्सटर्नल रीजन की वजह से है, या पेशेंट को एक एक्सटर्नल कॉज की वजह से है, उस केस में हम एक्सटर्नल कॉज को, एक्सटर्नल रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स टू एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजरी को यूज करेंगे. इंडेक्स टू एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजरी के कोड हमेशा लास्ट में जाते हैं, और वी कैन से हमेशा सेकेंडरी जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कॉज को रिप्रेजेंट करते हैं. जो इंजरी होती है वो हम यूज रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स टू डिसीज इंजरी. वहाँ से हम डिसीजेज और इंजरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कोड हमारे प्राइमरी जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं. अब इंडेक्स टू एक्सटर्नल कॉज का कोड हम तब यूज करते हैं जब किसी पेशेंट को कोई इंजरी होती है कोई एक्सटर्नल कॉज की वजह से, और हमें जो एक्सटर्नल कॉज है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजरी के इंडेक्स को यूज करते हैं. इस इंडेक्स से हमें चार चीजें रिप्रेजेंट करनी है. सबसे पहले वी हैव टू रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. Next is place of occurrence.
Third one is activity. Fourth one status. So सबसे पहले आपको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को रिप्रेजेंट करना है, देन आपको प्लेस ऑफ अकरेंस को रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद एक्टिविटी एंड देन स्टेटस आप इस सिंटेक्स से यूज करो। अब ये चार चीजें हमें रिप्रेजेंट करनी है, इन चारों के लिए आपका जो रेफरेंस वर्ड है वो वेरी करेगा। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का कोड ढूंढना है तो आपका जो रेफरेंस वर्ड होगा वो होगा कॉज ऑफ इंजरी। जो भी कॉज है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट को इंजरी हुई है ड्यू टू द फॉल फ्रॉम बेड, तो योर रेफरेंस वर्ड इज द फॉल, क्योंकि जो इंजरी हुई है वो गिरने की वजह से हुई है, तो फॉल आपका रेफरेंस वर्ड है। तो जो भी कॉज है वो आपका रेफरेंस वर्ड हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का कोड ढूंढने के लिए। अगर किसी पेशेंट को लैसरेशन हुआ है ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ विद द नाइफ, तो आपका जो कॉन्टेक्ट है वो रेफरेंस वर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हुई है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ अकरेंस। प्लेस ऑफ अकरेंस विल रिप्रेजेंट कि पेशेंट ज्योग्राफिकली कहाँ था, घर पे था, स्कूल में था, ऑफिस में था, और अम्यूजमेंट पार्क में था, कहाँ पे था, म्यूजियम में था, पेशेंट उस टाइम पे कहाँ पे था जब पेशेंट को इंजरी हुई है। दिस विल बी रिप्रेजेंट विद द प्लेस ऑफ अकरेंस। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं दिखाने के लिए कि पेशेंट उस टाइम क्या एक्टिविटी कर रहा था। वो कुकिंग कर रहा था, बेकिंग, स्टडी, और डांसिंग, एरोबिक्स, whatever the activity patient is doing at the time of the injury, we will represent that with the code activity code. Next one is status. Status हम represent करते हैं, ये status का कोड हम लेते हैं to represent the रीजन ऑफ द एक्टिविटी। पेशेंट वो एक्टिविटी क्यों कर रहा था। लेट्स से अगर पेशेंट एरोबिक्स कर रहा है और एरोबिक्स की वजह से उसे ओवर एक्सर्शन की वजह से उसे इंजरी हो गई है, तो वो एरोबिक्स क्यों कर रहा है, वो उसकी हॉबी है, वो उसको एज एन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है, वो सिविलियन एक्टिविटी के तहत कर रहा है, या वो वॉलंटियर एक्टिविटी के तहत कर रहा है, वो क्यों वो एक्टिविटी कर रहा है, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टेटस। सो प्लेस ऑफ अकरेंस, एक्टिविटी और स्टेटस के कोड ढूंढने के लिए आपको जो रेफरेंस वर्ड होगा वो सेम होगा। तो जो भी प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको ढूंढना अगर आपको, तो बुक में आपको प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाना होगा। एक्टिविटी को ढूंढने के लिए आपको एक्टिविटी पे जाना है, स्टेटस को ढूंढने के लिए स्टेटस पे जाना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से पेशेंट हैड अ इंजरी while cooking in her apartment kitchen उसके अपार्टमेंट किचन में उसको इंजरी हो गई while cooking in her apartment kitchen due to the contact with knife, क्योंकि उसका नाइफ से कांटेक्ट हो गया था उसका, मतलब जो चाकू से उसको हाथ कट गया उसका। और while cooking for her as an hobby, let's say cooking as an hobby, patient is doing cooking as an hobby. Okay, so now we have to find the 4 codes here. We have to use to tell the complete story, we need minimum 4 codes. So our first code will be mechanism of injury, and to find the code for mechanism of injury we have to refer the cause. Our reference word should be the cause. So यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे cause क्या है, क्या कुकिंग उसका इंजरी का कॉज है? नहीं, कुकिंग करने से किसी को इंजरी नहीं होती है। उसकी जो कॉज है वो है कांटेक्ट विद नाइफ, क्योंकि किसी को भी अगर कांटेक्ट हो जाता है नाइफ से या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से तो उसको इंजरी हो सकती है, उसको लैसरेशन हो सकती है। So in this case our reference word should be, to find the code for mechanism of injury, our reference word should be contact. तो हम इसमें contact word को रेफर करेंगे। प्लेस ऑफ अकरेंसेस, अपार्टमेंट किचन, किचन के अपार्टमेंट में थी ना ज्योग्राफिकली। एक्टिविटी, कुकिंग, एंड द स्टेटस। स्टेटस हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों कर रही थी कुकिंग, वो कर रही थी हॉबी के लिए। हमारा मैकेनिकल इंजरी इज कॉन्टैक्ट, प्लेस ऑफ अकरेंस इज किचन,
activity cooking, and hobby is a status. Now let's try to find the code. सबसे पहले contact का ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा cause क्या है, contact. अभी A चल रहा है, A चल रहा है, हम D पे आ गए भाई. कॉन्टैक्ट पे जाना है, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट. तो पेशेंट को जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो नाइफ की वजह से हुआ है, मतलब नाइफ से हुआ है. तो कॉन्टैक्ट में जाके हम IJKL हमें नाइफ देखना है. JH स्टोव मोल्डिंग, ये रहा हमारा नाइफ. W26.0 क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं था, तो हम इसको W26.0 लिखते हैं अभी. और इसका आगे टिक लगा है, तो टिक का मतलब सबको पता है कि टिक का मतलब है कि दिस इज एन इनकम्प्लीट कोड, और भाई हमें इसे कंप्लीट करना है. सबसे पहले हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था कॉज ऑफ इंजरी, तो और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. रिमेंबर, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के कोड ढूंढने के लिए आपका रेफरेंस वर्ड क्या होगा, जो भी उसका कॉज है. तो हमारा कॉज क्या था, कॉन्टैक्ट. हमारा कॉन्टैक्ट विद नाइफ था, और हमारा कोड हो गया W26.0, और हमें इसे कंप्लीट करना है, ये हमारा टिक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर द प्लेस ऑफ अकरेंस. प्लेस ऑफ अकरेंस के लिए क्या रेफरेंस रहेगा, प्लेस ऑफ अकरेंस ही रहेगा. तो हम अब इसमें प्लेस पे जाएंगे. P चल रहा है, हम K पे आ गए, हमें P पे जाना है प्लेस ऑफ अकरेंस के लिए. RMNOPQR जो ऊपर होगा, पॉइजनिंग प्लेस, ये रहा हमारा प्लेस ऑफ अकरेंस. प्लेस ऑफ अकरेंस का कोड ढूंढने के लिए हम प्लेस ऑफ अकरेंस पे ही जाते हैं. प्लेस ऑफ अकरेंस का कोड ढूंढने के लिए हमारे को रेफरेंस वर्ड कुछ और नहीं ढूंढना. यहाँ पे हम किचन नहीं ढूंढेंगे, इसमें हम इसमें प्लेस ऑफ अकरेंस पे ही जाएंगे, और उसके बाद इसमें किचन में जाएंगे. तो किचन इज अ पार्ट ऑफ द रेजिडेंस, सो हम इसमें जाके रेजिडेंस पे जाते हैं. फर्स्ट येलो वर्टिकल लाइन पर रेजिडेंस ये रहा, अपार्टमेंट, किचन, our code should be Y90.0 So for place of occurrence के लिए remember reference should be place only and our code should be 92.030. अब आते हैं, हमें ढूंढना है एक्टिविटी. तो एक्टिविटी पे चलते हैं. एक्टिविटी के लिए आपका रेफरेंस वर्ड एक्टिविटी ही रहेगा, और स्टेटस के लिए आपका वर्ड स्टेटस ही रहेगा. रेफरेंस जो रहेगा, ये हमारे रेफरेंस वर्ड है, स्टेटस ही रहेगा. तो अभी हम सी पे हैं, तो एक काम करते हैं, हम पहले स्टेटस ढूंढ लेते हैं, फिर एक्टिविटी के लिए ए पे ऊपर जाएंगे. PQRS STATUS, ये हमारा स्टेटस. स्टेटस ही आपका रेफरेंस वर्ड है. हॉबी के लिए कर रही थी तो लेडी, दैट इज Y99.8. सो हमारा स्टेटस का कोड हो गया Y99.8. एंड फॉर एक्टिविटी we have to refer activity only, so let's start, go to the A. ये 80 चल रहा है, हमें एक्टिविटी पे जाना है भाई. कंटिन्यू से कोड नहीं लेना. तो एक्टिविटी हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से, हम एक्टिविटी पे यहाँ पे पहुंच गए. अब एक्टिविटी से क्या करना है, हमें क्या कर रहा है, पेशेंट कुकिंग कर रही थी. एक्टिविटी में हम क्या ढूंढेंगे, कुकिंग ढूंढेंगे. हाय माय कुकिंग, ये क्या चल रहा है, CL चल रहा है. तो नेक्स्ट रो पे चेक करते हैं. ठीक है, हम CR पे पहुंच गए. टू पे जाना भाई. कुकिंग एंड बेकिंग Y93.G. So our last code should be Y93.G3. तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया. तो जो आपका इंडेक्स टू एक्सटर्नल कॉज यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट at least 4 conditions. The first thing is mechanism of injury.
to find the code for mechanism injury, you will refer the cause only. Next will be place of occurrence, then activity and then status. मैं एग्जाम्पल जो क्वेश्चन हैं वो कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, so that you can do the practice also for these questions. Now, let's go to the agenda of our today's session. So till now, in our multiple session, we have covered our CM introduction, use of ICD, index to disease and injury, table of neoplasm, drug, and last, index to external causes. We have already learned how to complete the code, कि हमें कोड को complete कैसे करना है, and how to locate the code also. So at the beginning we have learned ICD is just a two-step process, जिसका पहला स्टेप होता है कोड को लोकेट करना और दूसरा स्टेप होता है कोड को कंप्लीट करना, और हमने ये दोनों स्टेप अब सीख लिए। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, हमारे पास 22 चैप्टर्स हैं, इसमें कन्वेंशंस हैं जो हम अभी आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन as well as conventions of the ICD-10 CA. Thanks everyone. Bye. Signing off for today. Stop sharing and then end stream.